Hello everyone, welcome to my channel Dr. Amit's Anatomy की पाठशाला. Pharyngeal apparatus 1. In pharyngeal apparatus 1, we will discuss mainly about the pharyngeal arches. So before moving to the main topic, थोड़ा सा देख लेते हैं background. So यहाँ पर एक term है that is the pharyngeal apparatus. What is this pharyngeal apparatus? Pharyngeal apparatus also known as the bronchial apparatus. So term से clear है, यहाँ हम पढ़ रहे हैं apparatus. That means ये सिंगल स्ट्रक्चर नहीं होगा, ये कुछ स्ट्रक्चर्स के कॉम्बिनेशन को बोलेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता कहाँ है, फेरेंजियल अपरेटस कहाँ होता है? सो व्हाट इज दिस? इट इज द एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, दैट इज की एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो हेल्प करेगा इन द डेवलपमेंट ऑफ हेड एंड नेक. सो हेड एंड नेक का ये वाला एरिया जो अभी शेड कर रहे हैं, इस एरिया की डेवलपमेंट में जो एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर पार्टिसिपेट करता है, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज द फेरेंजियल अपरेटस और द ब्रैंकियल अपरेटस. लोकेशन ये होता कहाँ है? So it is present, embryological है तो developing mouth, that is the sternodium, and the developing heart. So developing mouth and developing heart के बीच वाला area is known as the pharyngeal apparatus in embryo. Actually it is forming the floor of the pharynx, very important, floor of the primitive or developing pharynx and the lateral wall of the developing pharynx. इन दो structures को ये बनाता है. It is horseshoe shaped structure, cylindrical structure है like this. diagram number 2 में देखिए. सो अगर हम बैक से डायसेक्शन करेंगे तो ऐसे एक स्ट्रक्चर मुझे फ्रंट वाली साइड दिखाई देगा. हमने बैक से कोरोनल सेक्शन लिया है, बैक वाले को हमने रिमूव कर दिया. देन हम अब अंदर से देखने लगे स्टूडेंट्स, तो हमें ऐसे अपरेटस दिखाई देता है. दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज द फेरेंजियल अपरेटस. सो ये हेड एंड नेक एरिया में यहाँ प्रेजेंट है और ये बनाएगा फ्लोर एंड द लेटरल वॉल ऑफ द फेरेंजियल और द डेवलपिंग फेरिंग्स. इसके फेट्स क्या है? पूरे अपरेटस के फेट्स देखे जाए, फेस, नेक हम पहले बोल चुके, हेड एंड नेक, देन developing mouth and pharynx, larynx etc. इस एरिया में होता है. और ये बना किससे होता है? ये बना होता है मेनली थ्री substances. So pharyngeal apparatus में तीन चीजें आती हैं. These are the pharyngeal arches, pharyngeal pouches, pharyngeal cleft or groove and membrane. So अगर हम फुल apparatus की बात करें, pharyngeal apparatus तीन चीजों से बना है. These are the grooves or clefts, then pharyngeal arches and the pouches. This is very important slide. ये आपको क्लियर होनी चाहिए, तभी आपको ये पूरे का पूरा टॉपिक समझ आता है. What are these cleft? So cleft are the ectodermal or the external. So इस एरिया में, नेक एरिया में यहाँ पे और हेड नेक एरिया में यहाँ पे ectodermal folds होंगे like this. Ectodermal fold हैं like this. These are known as the ectodermal are the clefts. Then what is this arches? जो हमारा आज का टॉपिक है, that is the pharyngeal arches, the mesodermal part. So जो mesodermal bar है बीच का, बीच में जो mesodermal bar होगा, this is known as the arches, pharyngeal arches. Then what are the pouches? So बाहर ectoderm, बीच में mesoderm, that's obvious कि अब अंदर endoderm होगी. So endodermal part is known as the pouches. So इस एरिया में ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिसका mesodermal bar, बीच वाला बार जो है, that is mesodermal, which is known as the pharyngeal arch. इसके बाहर डिप कर रहा substance is ectodermal, which are known as the clefts. और इसके अंदर वाली साइड endodermal, which are known as the our pouches. So like this we have the structure. So अगर आप यहाँ ये वाली डायग्राम को देखिए, this is developing embryo. developing embryo की ये head side है, this is tail side, cranial and caudal side बोलते हैं इनको. And here this is the full structure. This is anterior side or ventral side, this is dorsal और posterior side. in case of embryo ventral और dorsal word यूज करते हैं. So यहाँ पर ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, these are the pharyngeal apparatus. ये pharyngeal apparatus होते हैं. This is developing heart, this is modium. So हम ये जो लाइन लगाई है यहाँ से कट सेक्शन में देख रहे हैं अंदर से, तो हमें फेरिंग्स की फ्लोर दिखाई दे रही है. यहाँ पे फेरिंग्स की फ्लोर बनेगी एंड लेटरल वॉल. सो ये स्ट्रक्चर यहाँ है ऐसे. सो अब हमारा मेन टॉपिक, दैट इज द फेरेंजियल आर्चेस. व्हाट आर द फेरेंजियल आर्चेस? फिर से वही डायग्राम पे आ गए, हमने यहाँ से कट सेक्शन लिया है और अब हम आगे से एंटीरियर साइड ऑफ फ्लोर जो है वो देखेंगे अंदर से. दैट मीन्स फेरिंग्स के अंदर अब हम बैक से देखने लगे तो हमें ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देगा जो हमने डिस्कस कर लिया. व्हाट आर दीज फेरेंजियल आर्चेस? फेरेंजियल आर्चेस आर द मेसोडर्मल. सो ये जो सेंटर में मेसोडर्मल स्ट्रक्चर है सारे का सारा, दिस मेसोडर्मल स्ट्रक्चर इज नोन एज द फेरेंजियल आर्च. सो ये सारे का सारा जो
एक्चुअल डायग्राम में ब्राउन कलर का है पिक्चर में, लेकिन हम अभी रेड कलर में कर रहे हैं। दीज आर द फेरेंजियल आर्चेस। तो फेरेंजियल आर्चेस आर द स्ट्रक्चर और दीज आर नोन एज द कोर ऑफ मेसोडर्म प्लस न्यूरल क्रस्ट सेल। सो फेरेंजियल आर्चेस में दो स्ट्रक्चर्स हैं, मेसोडर्म एंड न्यूरल क्रस्ट सेल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देन फेरेंजियल आर्चेस कितनी होती हैं हमें? दीज आर अबाउट 5 से दे आर 5 पेयर ऑफ फेरेंजियल आर्चेस। सो राइट साइड में 5 होंगी, लेफ्ट साइड में 5 होंगी। सो 5 पेयर्स हैं, नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। एक्चुअली जब स्टार्टिंग होती है तो फेरेंजियल आर्चेस 6 होती हैं, लेकिन इन ह्यूमन बीइंग फिफ्थ फेरेंजियल आर्च इज रूडिमेंट्री जिससे कुछ नहीं बनता, तो हम में फिफ्थ फेरेंजियल आर्च डेवलप नहीं होती। दैट्स व्हाई हम में टोटल 5 फेरेंजियल आर्च रह जाती हैं, फिफ्थ इज एब्सेंट। ये बनती किस टाइम पे है? दे विल डेवलप फ्रॉम द फोर्थ और फिफ्थ वीक ऑफ द डेवलपमेंट। देन इनसे एक फेरेंजियल आर्च की अगर मैं बात करूं, अगर मैं द्वारा यही ब्राउन वाला एरिया देखिए आप, इस फेरेंजियल आर्च की बात करूं तो एक फेरेंजियल आर्च में 4 कंटेंट्स होते हैं। हर फेरेंजियल आर्च में अपने 4 कंटेंट्स होते हैं। दीज आर द आर्टरी, फेरेंजियल आर्चरी, these are the artery, then we have the cartilage and muscle, so this one is the cartilage और खुद जो ब्राउन कलर में सारे का सारा दिस इज द मसल एंड नर्व। सो हर फेरेंजियल आर्च में अपनी आर्टरी होगी, अपनी नर्व होगी, अपना कार्टिलेज होगा और अपना मसल होगा। दैट मीन्स यहाँ से ये स्ट्रक्चर डेवलप होंगे। सो यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन, किसी भी फेरेंजियल आर्च में वेन नहीं होती। सो वेन एब्सेंट होती है, एब्सेंट नहीं बोल सकते बट वेन इनका कोई कंपोनेंट नहीं है। अगर फेरेंजियल आर्चेस के कंपोनेंट पूछे जाएं तो दीज आर द 4 कंपोनेंट। दीज आर फर्स्ट ऑफ ऑल द आर्टरीज। तो आर्टरीज फेरेंजियल आर्च आर्टरीज को बोलते हैं एओर्टिक आर्च। सो ये होती कहाँ पे है? सेम अगेन वही डायग्राम है। दिस इज द डोर्सल साइड, दिस इज द वेंट्रल साइड। सो अगर हम देखें, दीज आर द प्रेजेंट इन बिटवीन दी टू डेवलपिंग एओर्टा। सो हमारे पास दो डेवलपिंग एओर्टाज होते हैं, वेंट्रल एओर्टा आगे वाला एंड डोर्सल एओर्टे। सो डोर्सल एओर्टे और वेंट्रल एओर्टा के बीच में जब डेवलपमेंट हो रही होती है तो उनके बीच में कनेक्शंस होते हैं। दीज कनेक्शंस आर नोन एज द एओर्टिक आर्च, क्योंकि ये जो हम अभी आर्चेस की बात कर रहे हैं उनके थ्रू आपस में कनेक्ट करती हैं वेंट्रल एंड डोर्सल एओर्टा को, तो इनको बोलते हैं एओर्टिक आर्चेस। दीज एओर्टिक आर्चेस आर प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी फेरेंजियल आर्च, तो इसीलिए इनको आर्च वर्ड दिया है। नर्व्स, हर फेरेंजियल आर्च के पास अपनी नर्व होगी। सो दीज नर्व्स आर एक्चुअली दे आर developing from hind brain. So this is a posterior side, hind brain से nerves develop करेंगी। That's why these all are cranial nerves. So pharyngeal arches में सारी की सारी cranial nerve होंगी और कोई nerve आप नहीं देखोगे यहाँ पे। तो यहाँ पर जब हम टर्म पढ़ते हैं, यहाँ दो तरह की हमारे पास nerves होती हैं। These are pre-traumatic and post-traumatic. Trauma word is the trench, मतलब जो हमने अभी बोला था ectodermal cleft, ये क्लेफ्ट को ट्रीमा बोलते हैं। तो ट्रीमा से प्री एंड पोस्ट ट्रॉमेटिक, तो ट्रीमा के रिलेटेड हमारे पास प्री एंड पोस्ट ट्रॉमेटिक होती है। एक्चुअली पोस्ट ट्रॉमेटिक अगर मैं यहाँ पे देखें, दिस इज द फेरेंजियल आर्च, फर्स्ट फेरेंजियल आर्च की ये हेड वाली साइड है, दिस इज द क्रेनियल साइड, अपोजिट साइड इज द क्वाड्रल साइड, टेल वाली साइड। तो क्रेनियल साइड के साथ जो नर्व होती है उसको बोलते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक नर्व, और जो क्वाड्रल साइड में होती है उसको बोलते हैं प्री ट्रॉमेटिक नर्व। इन ह्यूमन बीइंग हमारे में सिर्फ ओनली फर्स्ट फेरेंजियल आर्च जो है उसके पास दो नर्व होती हैं, प्री ट्रॉमेटिक एंड द पोस्ट ट्रॉमेटिक। बाकी सब में सिंगल सिंगल नर्व होती हैं, बाकी सब में सिर्फ एक नर्व डेवलप होती है, दोनों नहीं होती हैं। तो अगर हम टोटल ऑफ फेरेंजियल आर्चेस की बात करें तो हमने बोला था 4 कंपोनेंट्स होंगे, इनमें से 2 कंपोनेंट अभी डिस्कस करते हैं। दीज आर द स्केलेटल डेरिवेटिव्स और द मसल डेरिवेटिव। दैट मीन्स अगर हम फर्स्ट डायग्राम में देखें, फर्स्ट पिक्चर देखिए, तो हमने बोला है इसी से हम अभी ड्रा भी करेंगे साथ साथ में, जो आपको एग्जाम में ड्रा करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, फेरेंजियल आर्चेस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। यू हैव टू ड्रा दिस स्ट्रक्चर्स एंड यू हैव टू लर्न, क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा एमसीक्यू बनते हैं। सो लाइक दिस वी हैव फर्स्ट, second, third, fourth, fifth is rudimentary, and then we have the sixth pharyngeal arch of right side. Same arches we have first, second, third, fourth, fifth, sixth है की जगह fifth on the left side. So like this we have the pharyngeal arches. हमने अभी बात की है
कि इनका जो कोर है, कोर इज द आर्च, बाहर एक्टोडर्म, अंदर एंडोडर्म, बीच में आर्च। तो हम आर्च डिस्कस कर रहे हैं ओनली। हर आर्च के अपने 4 कंपोनेंट होंगे। वी हैव द आर्टरी, हर आर्च की अपनी आर्टरी, देन हर आर्च की अपनी नर्व, दोनों साइड होंगी बायलेटरल, क्वाइट ऑब्वियस। देन हर आर्च का अपना कार्टिलेज, और खुद जो ब्राउन कलर में दिखाई दे रहा है, दीज आर द, या जो हम बोलते हैं कोर, दैट इज द मसल। तो अब अगर हम यहाँ पे फर्स्ट फेरेंजियल आर्च की बात करें, तो फर्स्ट फेरेंजियल आर्च is the named arch which is known as the mandibular arch। तो mandibular arch is the first pharyngeal arch। आगे हमने टेबल में भी ये पूरा डिस्कस किया है, लेकिन यहाँ ये बेसिक डायग्राम है, यहाँ से आपको क्लियर होना चाहिए। तो अगर हम फर्स्ट फेरेंजियल आर्च की बात करें, दैट इज नोन एज द मैंडिबुलर आर्च। और मैंडिबुलर आर्च के मसल्स, मैंडिबुलर आर्च से अब कौन कौन से मसल डेवलप होंगे, तो याद करने के लिए आप ये देखिए, एंटीरियरली आगे से देख रहे हैं। सो अगर हमने बोला था हेड नेक वाला एरिया, तो यहाँ वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया डेवलप होगा फर्स्ट फेरेंजियल आर्च से। ये एरिया फर्स्ट फेरेंजियल, क्योंकि मैंडिबल से नाम बोला हमने, तो मैंडिबल मेनली ये वाला एरिया जो है, दैट इज विल डेवलप फ्रॉम दी फर्स्ट फेरेंजियल आर्च। तो फर्स्ट फेरेंजियल आर्च के मसल जो होते हैं, दीज आर रिलेटेड टू दी मैंडिबल, मैंडिबल से रिलेटेड होंगे। सो मसल ऑफ मास्टिकेशन, जो मसल ऑफ मास्टिकेशन, जो मसल मास्टिकेशन में यूज होता है, दो आर डेवलपिंग फ्रॉम दी फर्स्ट फेरेंजियल आर्च, इंक्लूडिंग एंटीरियरली, एंटीरियर वैली ऑफ डाइगेस्टिक, टेंसर विलाई पैलेटिने एंड टेंसर टिम्पनी, दोनों टेंसर। सो दीज मसल्स आर डेवलपिंग फ्रॉम द फर्स्ट फेरेंजियल आर्च। मसल कंपोनेंट आ गए इसके एम से फर्स्ट फेरेंजियल आर्च थी, एम से ही इसके कंपोनेंट है। देन कार्टिलेज, अब कार्टिलेज, फर्स्ट फेरेंजियल आर्च का कार्टिलेज इज नोन एज द मैकल्स कार्टिलेज। तो फर्स्ट फेरेंजियल आर्च जब डेवलप करेगी, ये लेटरल साइड से देख रहे हैं हम। अब डायग्राम नंबर, फिगर नंबर 3 में देखिए, लेटरल साइड से फर्स्ट फेरेंजियल आर्च को हम लेटरल साइड से देखने लगे, तो दिस इज वेंट्रल साइड, दिस इज डोर्सल साइड। नाउ इसका कार्टिलेज इज नोन एज द मैकल्स कार्टिलेज। तो डोर्सली from first pharyngeal arch, from the macal cartilage will form the malleus and incus। so malleus and incus first pharyngeal arch से बनी। then बीच का जो macal cartilage है, ये regress कर जाएगा, and rest macal cartilage will form the mandible। later on इसी mandible process से हमारे पास maxillary process भी बनती है। so again यहाँ m है, अभी निमोनिक भी दूंगा आपको मैं, फिर m है। so बोन बनी इससे, या कार्टिलेज था इसका, मैकल्स कार्टिलेज फर्स्ट का, एंड मसल मैंडिबल बना इससे, मैक्सिला बना। देन मसल्स बने, मसल ऑफ मास्टिकेशन, फिर एम आ गया इसके पास, एंड मेलियस एंड इनकस। सो दीज आर द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फेरेंजियल आर्च। अब हम अगर हम सेकंड फेरेंजियल आर्च की बात करें, द सेकंड फेरेंजियल आर्च इज आल्सो नेम्ड आर्च। हमारे पास दो ही नेम्ड आर्च हैं, दीज आर द फर्स्ट फेरेंजियल आर्च एंड द सेकंड फेरेंजियल आर्च। सो दीज आर द नेम्ड आर्चेस। तो अगर हम सेकंड फेरेंजियल आर्च की बात करें, दिस इज द सेकंड फेरेंजियल आर्च। इसके भी अपने सेम कंपोनेंट होंगे, इसके पास भी वही होंगे, तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं मसल एंड स्केलेटल। तो इसका जो मसल एंड स्केलेटल है, सेकंड इज एस। तो यहां से मसल बनते हैं एस एस। अदरवाइज आप अगेन डायग्राम नंबर 1 को देखिए, इस फिगर में देखिए, हमने यहाँ पे मैंडिबल का ओरिजिन कर लिया, दैट इज फर्स्ट फेरेंजियल आर्च, और इससे रिलेटेड मसल्स। देन मैक्सिला की हमने ओरिजिन कर लिया, इससे रिलेटेड मसल्स। ईयर ओसिकल में हमने दो ईयर ओसिकल्स फर्स्ट फेरेंजियल आर्च से कर ली। अब जो इनसे रिलेटेड स्ट्रक्चर रह गए हैं, वो सेकंड फेरेंजियल आर्च से बनेंगे। तो सेकंड फेरेंजियल आर्च के अगर मैं कार्टिलेज की बात करूं, तो सेकंड फेरेंजियल आर्च का कार्टिलेज होता है रिकेट्स कार्टिलेज। तो यहाँ पे एक ही एक्सेप्शन है, अदरवाइज बाकी स्ट्रक्चर एस एस से है। सेकंड फेरेंजियल आर्च इज known as the hyoid arch। first was the mandibular arch, second is the hyoid arch। so हमें पता है mandible के बाद we have the hyoid bone, so that's why this is the hyoid arch first and second, then this is the second is the hyoid arch। and अगर मैं muscles बोलूं इससे, तो muscles of facial expression, so facial expression के सारे muscle second pharyngeal arch से बनते हैं। so this is the second pharyngeal arch। अगेन ये सेकंड फेरेंजियल आर्च का कार्टिलेज है, which is known as the rickets cartilage। posteriorly it will form the bone
सिंगल बोन रह गई थी हमारी ईयर ओसिकल में, दिस इज द स्टेप्स एस। देन anteriorly it will form, अगर anterior by side आए ventral side, it will form the hyoid bone। hyoid का भी कौन सा, small या lesser s, small horn of the hyoid bone and the body of the hyoid bone। so hyoid bone की small horn, small cornu या lesser cornu and the upper portion of the body of the hyoid bone are mainly found by the second pharyngeal arch with stapes। मसल्स की बात करें, facial expression muscle, so facial expression muscle with buccinator and platysma, यहाँ पे platysma होता है that, so सारे facial expression muscle and platysma and buccinator are the component of the second pharyngeal arch। mainly हमने अभी बात की कि only two arches are the named arches, these are the first and second arches। then the third arch इनका अब कोई नाम नहीं होगा, this is the third arch का component single muscle, so easy to remember, third arch is this one। थर्ड आर्च से एक ही मसल बनता है। एंड कार्टिलेज और बोन की बात की जाए तो हमने बोला था लेसर हॉर्न ऑफ द हॉर्न एंड बॉडी का पार्ट सेकंड से बना, तो बाकी जो बचा दैट इज द थर्ड से ग्रेटर हॉर्न ऑफ द हॉर्न बोन एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द हॉर्न बोन विद सिंगल मसल दैट इज स्टाइलोफेरिंजियस। सो यह इसके बाद फेरिंग स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ फेरिंग्स होती है, तो स्टाइलोइड प्रोसेस से फेरिंग्स तक स्टाइलोफेरिंजियस ओनली सिंगल मसल, एक मसल यहाँ से डेवलप होता है। देन फोर्थ फेरिंजियल आर्च, अगर फोर्थ फेरिंजियल आर्च की बात की जाए, अब अगेन अगर इसी डायग्राम की ओर देखते जाए हम, तो फर्स्ट से हमने यहाँ का एरिया डेवलप करवाया था, सो ये एरिया फर्स्ट से डेवलप हुआ। अब डाउन चलेंगे नेक में, तो हार्ड वाला एरिया सेकंड से आ गया, उसके नीचे हमारे पास स्टाइलोफेरिंजियस एंड लोअर पार्ट ऑफ हार्ट डेवलप होगी। अब इससे नीचे आए तो वी हैव द pharynx, these are the constrictors of the pharynx and उसके बाद हमारे पास आएगी लेरिंग्स, सो यहाँ कहीं लेरिंग होगी, सो ऐसे ही डेवलपमेंट होगी। सो फोर्थ से डेवलपमेंट होता है मेनली द एरिया ऑफ एडम्स एप्पल। सो थायराइड कार्टिलेज, मेनली थायराइड कार्टिलेज, इसका कार्टिलेज आ गया, और मसल्स इसके पास से फेरिंजियल कंस्ट्रिक्टर्स एंड क्रिकोथायराइड, जो बाहर वाला होगा क्रिकोथायराइड मसल, दे विल डेवलप फ्रॉम फोर्थ फेरिंजियल आर्च। फिफ्थ से कुछ नहीं बनेगा। Sixth pharyngeal arch में we have the cricoid cartilage and other cartilages of the larynx and their muscles। so आप डायग्राम से ही इसको याद कर सकते हो। सबसे पहले हमारे पास बॉडी में मैक्सिला होता है एंड मैंडिबल होता है, they are from first pharyngeal arch, then we have the hyoid bone first से second से and some part from third। उसके बाद we have the thyroid cartilage, this is from fourth, then we have other laryngeal cartilage, these are from sixth। so ऐसे आप याद कर सकते हो। then nerves and arterial component, अब इन्हीं की नर्व और आर्टियल कंपोनेंट हमने पहले ही बोला था कि हर फेरेंजियल आर्च की अगर मैं बात करूंगा, हर फेरेंजियल आर्च के पास अपनी नर्व है और अपनी आर्टरी है, लाइक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, अब आपको पता है फोर्थ, like this we have the arches, different arches। then these five arches has their own arteries and the nerve, हर किसी की अपनी आर्टरी होगी और नर्व होगी, तो इनको याद करना भी बहुत इजी है। अगर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल नर्व की बात कर लूं, हमने बोला था फर्स्ट फेरेंजियल आर्च से डेवलप हुआ ये एरिया, दैट इज द मैंडिबुलर एरिया। सो मैंडिबुलर एरिया यहाँ से डेवलप हुआ एंड मसल ऑफ मास्टिकेशन, सो मसल ऑफ मास्टिकेशन की नर्व सप्लाई या जो मैंडिबल से अटैच्ड मसल्स होंगे वो यहीं से डेवलप होंगे। दैट मींस अगेन फर्स्ट के साथ रिलेशन हो गया नर्व का, दैट इज एम, दैट इज द मैंडिबुलर नर्व, दैट इज द ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। सो ट्राइजेमिनल नर्व की मैंडिबुलर ब्रांच इज द नर्व ऑफ फर्स्ट फेरेंजियल आर्च। लेकिन हमने अभी बात की थी फर्स्ट फेरेंजियल आर्च में दो नर्व्स होती हैं, दैट इज पोस्ट ट्रॉमेटिक एंड प्री ट्रॉमेटिक। तो पोस्ट ट्रॉमेटिक इज द मैंडिबुलर नर्व और प्री ट्रॉमेटिक इसके साथ आती है, दैट इज द फेशियल नर्व। फेशियल नर्व की कोडा टिम्पेनी ब्रांच इज द प्री ट्रॉमेटिक नर्व ऑफ द फर्स्ट फेरेंजियल आर्च। इसके पास हर आर्च की अपनी सिंगल नर्व होगी। तो अगर मैं सेकंड फेरेंजियल आर्च की बात करूं,
सेकंड फेरेंजियल आर्च हैज सिंगल नर्व। तो अब मैं अगेन इसी डायग्राम से नीचे आता जाऊंगा, या अगर हमने लास्ट डायग्राम में याद किया था उससे भी कर सकते हैं। सो फर्स्ट से हमने बोला मैंडिबल बना था, दैट्स व्हाई मैंडिबुलर नर्व। सेकंड से हमने बोला मसल ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन विद प्लेटिज्मा, तो इनकी नर्व सप्लाई इज द फेशियल नर्व। So second की nerve is the facial nerve. Third pharyngeal arch will have the next nerve, that is the glossopharyngeal nerve. So third की nerve is the glossopharyngeal nerve. तभी glossopharyngeal nerve, तभी nerve supply of the stylopharyngeus की nerve होती है glossopharyngeus. Then fourth की अपनी nerve होती है, that is the 10th cranial nerve, और 10th is the biggest की branches होती है mainly upper, ये वाला एरिया था, तो that is the superior laryngeal nerve. That is the superior laryngeal nerve. That is the branch of the vagus nerve, which is the nerve of the fourth pharyngeal arch. Now fifth is rudimentary. Sixth में we have the recurrent laryngeal nerve. आगे टेबल में सारी मैं डिस्कस भी करूंगा. Recurrent laryngeal nerve, that is also branch of the vagus nerve. So these are the nerves of the pharyngeal arches. First में we have the mandibular nerve, then facial nerve, then we have glossopharyngeal nerve, superior laryngeal nerve and recurrent laryngeal nerve. Arteries. So arteries याद करने के लिए सेम उसी स्टाइल से याद करेंगे हम. थोड़ा सा इसका ट्रिक दूंगा आपको, अदरवाइज याद करना थोड़ा सा टफ हो जाता है. सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इज rudimentary, sixth. So like this we have the pharyngeal arches. Outer side is ectodermal like this, वो हम सेकंड वीडियो में डिस्कस करेंगे. इनर साइड इज एंडोडर्मल, ये भी हम सेकंड वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो हम अब आर्टेरियल कंपोनेंट, हर आर्च की अपनी आर्टरी होगी. दैट मींस वी हैव आर्टरीज लाइक दिस, राइट एंड लेफ्ट साइड. सो यहाँ भी आप देख सकते हो वी हैव द आर्टरीज. तो आर्टरीज के आपको नाम याद रखने हैं. दैट मींस अगर मैं उस आर्च में देखूं तो मुझे कौन सी आर्टरी मिलेगी, या लेटर ऑन जब डेवलपमेंट हो जाएगी तो उस आर्च की कौन सी आर्टरी हम में एडल्ट में प्रेजेंट होगी, उसका रिप्रेजेंटेटिव कौन सा है. दीज आर द आर्चेस. हर स्ट्रक्चर ऐसे ही है. सो फेस के साइड देखें, दिस इज मैक्सिला, दिस इज ईयर, हियर इज हार्ड. Then in the middle of neck, heart के नीचे we have the thyroid cartilage, then laryngeal cartilage, area of heart and both side area of lungs. So ऐसे ही arteries याद करनी है. अगर हम देखें सबसे पहले we have the maxilla. So first pharyngeal arch की artery is the maxillary arch, maxillary artery. Mainly we have the maxillary artery. इसके नीचे we have the heart, इसीलिए pharyngeal arch second का नाम था heart. और हार्ट से डोर्सल साइड से हमारे पास बोन बनती थी स्टेपिड्स, तो स्टेपिडियस के नाम से ही इसका आर्टरी का नाम है. दैट इज द स्टेपिडियल आर्टरी और हार्ड आर्टरी. तो आप यहाँ से ही देख सकते हो. थर्ड, अब मैं इससे नीचे आऊंगा तो नेक एरिया है. दिस इज द एरिया ऑफ नेक. सो हियर वी हैव द एक्सटर्नल एंड कॉमन कैरोटिड. सो ऊपर से नीचे आऊंगा तो स्ट्रक्चर ही ऐसे हैं, एक्सटर्नल कैरोटिड, कॉमन कैरोटिड एंड इंटरनल कैरोटिड लाइक दिस. सो यू हैव टू रिमेंबर that from third we have the common carotid artery, यहाँ पे common carotid artery and the internal carotid artery. external यहाँ पे याद नहीं रखनी है. You have to remember two arteries. third की artery is the common carotid and internal carotid. अब मैं इसके नीचे आऊंगा, इससे नीचे आऊं तो here we have the subclavian artery on right side. तो fourth की on right side we have subclavian artery. On left side we have the arch of aorta. So on left side अलग अलग होगी fourth में, right side, left side we have the arch of aorta. So it will help into formation of the arch of aorta. Then fifth is rudimentary and sixth, इसके बाद we have the pulmonary trunk. So on both side sixth will help into formation of the pulmonary artery, and on left side it will also help in formation of ductus arteriosus. So ऐसे आप याद कर सकते हो बड़े easily. इसको आपको याद करना इजी है अगर आप अपने फेस के अकॉर्डिंग देखते चलो. फर्स्ट में वी हैव द मैक्सिलरी आर्टरी, देन हार्ड और स्टेपिडियल आर्टरी, देन कॉमन कैरोटिड एंड इंटरनल, जो ब्रेन को जाएगी, इंटरनल कैरोटिड. अब इससे नीचे नेक में आऊंगा, राइट साइड सबक्लेवियन, लेफ्ट साइड आर्च ऑफ एओर्टा, देन वी हैव द pulmonary trunk and the ductus arteriosus. So like this we have the arteries.
सो लास्टली पूरे लेक्चर को हम एक बार एक्यूमुलेट करके पढ़ लेते हैं ताकि हमें आंसर करना इजी हो जाए, देन मैं बताऊंगा कि पेपर में कैसे आंसर करना है। सो हमने बोला आर्चिस, हर आर्च के 4 कंपोनेंट होंगे। दीज आर, फर्स्ट इज नर्व, देन मसल एंड स्केलेटल डेरिवेटिव आल्सो नोन एज कार्टिलेज और आर्टरीज। तो 4 इनसे चीजें बनेंगी या इनके अंदर 4 चीजें प्रेजेंट होती है। फर्स्ट इज द मैंडिबुलर आर्च, एम इज द मैंडिबुलर आर्च। फर्स्ट को हमने एम निमोनिक दिया था। नर्व, दैट इज 2 नर्व्स बोली थी इसके लिए हमने। पोस्टमैटिक, दैट इज द एम mandibular nerve. Pre-traumatic is the facial nerve, branch of the facial nerve is the chordae tympani. These are MCQ question. Muscles, M, muscle of mastication, mylohyoid muscle, anterior belly of digastric muscle, tensor, दोनों tensor villi palatinae and tensor tympani, all are supplied by the mandibular nerve. तो इसीलिए ये फर्स्ट आर्च के हैं, मसल ऑफ मास्टिकेशन। देन skeleton, again M, that is Meckel's cartilage. अब यहाँ से क्या बनेगा, M, Malleus, incus, again mandible, maxilla, zygomatic bone, part of the temporal bone, anterior ligament of Malleus, 2 लिगामेंट बनते हैं, anterior ligament of Malleus and sphenomandibular, ये भी M है, sphenomandibular ligament. Artery is the maxillary artery. So फर्स्ट को आप M से याद कर सकते हो, हर चीज यहाँ से MM से है। एवरी पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक चीज आपको पेपर में अटेम्प्ट करनी है। जब आपको ये क्वेश्चन आएगा तो ऐसे टेबल आपको ड्रा करना होता है, और अगर एमसीक्यूज क्वेश्चन आते हैं तो आपको ऐसे ही अटेम्प्ट करने हैं। देन सेकंड इज हार्ड, सो 2 ही नेम्ड आर्चिस थी। सेकंड इज हार्ड, नर्व इज फेशियल नर्व, सो फेशियल नर्व से जो मसल सप्लाई होते हैं वो यहाँ से डेवलप होंगे, सो फेशियल एक्सप्रेशन मसल। देन बक्सीनेटर, ऑरिकुलर, दीज आर मसल रिलेटेड इन टू द ईयर। देन फ्रंटालिस, प्लेटिज्मा इज वेरी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू क्वेश्चन, प्लेटिज्मा याद रखना है, फेशियल नर्व से होता है इसलिए सेकंड फेरेंजियल आर्च से डेवलप होता है। देन ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई एंड ऑर्बिकुलरिस ओरिस, तो दोनों ऑर्बिकुलरिस पोस्टीरियर वैली ऑफ डाइगेस्टिक, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप यहाँ से अप्रिशिएट कर सकते हो एक चीज कि हमने बोला एंटीरियर वैली ऑफ डाइगेस्टिक इज डेवलप्ड फ्रॉम फर्स्ट आर्च, पोस्टीरियर वैली ऑफ डाइगेस्टिक is developing from second arch, इसीलिए डाइगेस्टिक की नर्व सप्लाई ड्यूल नर्व सप्लाई है, एंटीरियर वैली की नर्व सप्लाई मैंडिबुलर नर्व है, पोस्टीरियर की फेशियल है। देन stylohyoid and stapedius, these all are from S, so S is mnemonic for second. Cartilage is Rickers cartilage and bone stapes, styloid process, small, again SSS, small horn या lesser horn, or upper part of the body of the hyoid bone. Ligament, again S, this is stylohyoid, so S S S, and artery is S, that is the stapedius, also the hyoid artery. Then from third arch का nerve is the glossopharyngeal nerve, muscle is single muscle, stylopharyngeus, again MCQ question, very important MCQ question, stylopharyngeus, so stylopharyngeus की nerve supply is glossopharyngeal क्योंकि ये थर्ड से डेवलप होता है। देन थर्ड इज ग्रेट हॉर्न, लेसर या स्मॉलर हॉर्न हमने बोल दिया था, हार्ड का ऊपर होता है तो सेकंड से बनता है। देन लोअर पार्ट इज फ्रॉम द ग्रेट एंड लोअर पार्ट ऑफ द हार्ड बॉडी, तो नीचे वाला हार्ड का सारा पार्ट थर्ड से बनता है। थर्ड की आर्टरी इंपॉर्टेंट, कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। देन फोर्थ की नर्व इज द सुपीरियर लेंजियल नर्व विच इज ए ब्रांच ऑफ वेगस नर्व, सो जो सुपीरियर लेंजियल नर्व से जो चीज इनर्वेट होती है वहां यहाँ से डेरिवेटिव होंगे उसके। दीज आर द फ्रेंजियल कंस्ट्रिक्टर्स, कंस्ट्रिक्टर ऑफ फेरिंग्स मसल्स। देन क्रिकोथायरॉयड, वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिकोथायरॉयड मसल and levator villi palatinae, these are innervated by superior laryngeal nerve, and lamina, that is the part of the lamina, that is the part of thyroid cartilage, ये बनता है फोर्थ से थायराइड कार्टिलेज का पार्ट बनता है। यहाँ हमने किया था राइट साइड में अलग एंड लेफ्ट साइड में अलग अलग आर्टरीज होती हैं। राइट साइड में इसका डेरिवेटिव है सबक्लेवियन, लेफ्ट साइड में इट विल हेल्प इन फॉर्मिंग द आर्क ऑफ अयोटा। फिफ्थ इज रूडिमेंट्री, देन वी हैव द सिक्स्थ फेरेंजियल आर्च की नर्व इज अगेन वेगस, बट इसकी ब्रांच होगी रिकरेंट क्योंकि वो उससे नीचे आ रही है, रिकरेंट। अब क्रिकोथायरॉयड को छोड़ के बाकी सारे मसल्स ऑफ लेरिंग्स सबकी नर्व सप्लाई है रिकरेंट, दैट्स व्हाई दे विल डेवलप फ्रॉम सिक्स्थ। देन थायरॉयड कार्टिलेज को छोड़ के बाकी कार्टिलेज, क्रिकोइड कार्टिलेज, रेटिनोइड, कॉर्निकुलेट कार्टिलेज, ये सारे कार्टिलेज सिक्स्थ फेरेंजियल आर्च से डेरिवेटिव होते हैं इनके। एंड आर्टरी की बात की जाए, पल्मोनरी आर्टरी,
and left side we have the ductus arteriosus. So these are the derivatives of our pharyngeal arches. तो जब आपको ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो हाउ टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको pharyngeal arches पे अगर क्वेश्चन आता है तो यू हैव टू ड्रा द दिस डायग्राम. वैसे ये डायग्राम pharyngeal apparatus की है, तो आपको फुल डायग्राम ड्रा करनी है. मेनली आपको ड्रा करनी है आर्चेस जो हम ड्रा करते आए हैं. सो यू हैव टू ड्रा द 5 arches like this on right side as well as on left side. So दोनों साइड आप ड्रा करोगे. फिर आप आर्चेस के कंपोनेंट जरूर ड्रा करोगे. यू विल ड्रा द मस्कुलर कंपोनेंट प्रॉपर्ली कलर करके इसको. देन यू विल ड्रा द आर्टरी, दैट इज हर एक आर्च की अपनी आर्टरी होगी एंड हर एक आर्च की अपनी नर्व. सिर्फ फर्स्ट के लिए आप 2 नर्व्स ड्रा करोगे, सेकंड के लिए सिंगल नर्व, थर्ड में सिंगल, फोर्थ में सिंगल, सिक्स्थ में सिंगल, फिफ्थ इज एब्सेंट, वी नो रूडिमेंट्री है. देन नर्व, आर्टरी एंड दिस मस्कुलर कंपोनेंट, देन द कार्टिलेज. तो आप ऐसे इसके कंपोनेंट ड्रा करोगे. अगर आपको pharyngeal apparatus पे क्वेश्चन आता है तो आपको साथ में एक्टोडर्म, जो हम सेकंड स्लाइड में करेंगे सेकंड वीडियो में, एज वेल एज एंडोडर्म के भी डेरिवेटिव लिखने हैं. तो एक मास्टर डायग्राम ये है. सो ये डायग्राम आपको आनी चाहिए ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए. देन अगर आपको apparatus की बजाय सिर्फ और सिर्फ pharyngeal arches के ऊपर क्वेश्चन आता है, जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, दीज आर द pharyngeal arches. तो pharyngeal arches पे आपको डायग्राम नंबर 1, पिक्चर नंबर 1 एंड पिक्चर नंबर 2, यू शुड नो हाउ टू ड्रा दिस. 2 अगर आपसे प्रॉपर्ली नहीं भी ड्रा हो रही, लेकिन 1 आपको आनी चाहिए, जो और साथ में जो हमने टेबल डिस्कस किया है, ये टेबल आपको प्रॉपर्ली आना चाहिए. देन you can get the marks. Then applied anatomy, that is Treacher-Collins syndrome, very important. What is this Treacher-Collins syndrome? Also known as mandibulofacial dysostosis, that means facial bone, that is mandible, और facial bone की developmental disorder. ये disorder autosomal dominant है. फर्स्ट MCQ क्वेश्चन AD है ये, and it is 1:50,000 इसका इंसिडेंट है. सो इट इज रेयर डिसऑर्डर. क्लिनिकली अगर देखा जाए पेशेंट, तो इसमें पेशेंट में मैंडिबल का मोस्टली डोर्सल पार्ट या पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द मैंडिबल इज नॉट वेल डेवलप्ड एंड द ज़ाइगोमैटिक बोन इज नॉट डेवलप्ड वेल. तो ये डिजीज हुआ फर्स्ट फेरेंजियल आर्च का, क्योंकि हमने बोला था ये वाला जो एरिया है फर्स्ट फेरेंजियल आर्च से डेवलपमेंट होती है इनकी. सो दिस इज द डिसऑर्डर ऑफ द फर्स्ट फेरेंजियल आर्च. अगर फर्स्ट फेरेंजियल आर्च प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होती तो ये डिसऑर्डर होगा. इसमें मैंडिबल एंड zygomatic hypoplasia होगा. दैट मींस मैंडिबल और zygomatic बोन प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होंगे. देन द palpebral पार्ट. सो अगेन आप इसी पिक्चर को देखिए, आईज को नोट करिए. palpebral पार्ट इज डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड. सो डाउनवर्ड डायरेक्टेड palpebral पार्ट होता है. इसमें एयर डिफेक्ट होगा, मेनली मिडल एयर का डिफेक्ट होता है, या कंडक्टिव डिफनेस होगी पेशेंट में. सो दिस इज द एमसीक्यू क्वेश्चन. कौन से जीन की म्यूटेशन है? दिस इज द म्यूटेशन ऑफ TCOF1 gene located on chromosome number 5. Second is the Frere-Robin syndrome. So in this syndrome there is the mutation of the chromosome, that is second, 11th और 17th. इनमें म्यूटेशन होगी. जीन कौन सा है? दिस इज द SOX9 जीन. सो ये भी डेवलपमेंटल डिसऑर्डर ऑफ फर्स्ट फेरेंजियल आर्च है मेनली. इसका इंसिडेंट 1:8500 है. एंड क्लिनिकली इसमें क्या होगा? इसमें मेनली मैंडिबल प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होता. तो माइक्रोगेनिथिया, यहाँ से देखिए ये चिन वाला पार्ट डेवलप नहीं है, तो छोटा मैंडिबल है, दैट्स इज माइक्रोगेनिथिया. एंड इसमें टंग रिट्रैक्टेड होगी, टंग अंदर को रिट्रैक्टेड होगी, जिसको बोलते हैं ग्लोसोप्टोसिस. देन अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है साथ में बेबी को, एंड क्लेफ्ट पैलेट साथ में होगा. सो अल्ट्रासाउंड में इसको डिटेक्ट कर सकते हैं. इंट्रायूट्राइन अल्ट्रासाउंड के टाइम डिटेक्ट हो जाता है. इसमें हमें बेबी में दिखाई देता है माइक्रोगेंथिया, क्लेफ्ट पैलेट एंड क्लेफ्ट लिप. So thank you. If you have any question, any query, you can ask me. If you like my channel, like it, subscribe it and share it.